ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं अबाउट पोलराइजेशन ऑफ लाइट. तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन and then we will understand how do we polarize a beam of light which was initially unpolarized. So first let us discuss the meaning of polarization. Polarization जो phenomenon है उसके मायने क्या है. लेकिन इससे पहले कि आपको पोलराइजेशन के बारे में मैं समझाऊं, यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग of some basic facts about light. As we all know कि light is a type of wave. Light एक wave होती है that you already know, and that is what the entire wave optics is all about. आपने जो wave optics पढ़ा है उसमें आप लोगों ने light के wave behavior को appreciate किया है. You have observed the phenomenon where we cannot discard the wave nature of light. आपने जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम लोग रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं. तो when you studied ray optics, that is geometrical optics, we had completely discarded the wave nature of light, and there we had considered that light travels rectilinearly. That means light goes on a straight path. We studied the convergence of light when it passes through a converging lens. When light passes through a prism, it shows phenomenon of dispersion. All that we studied when we were studying geometrical optics. Here in wave optics, we are concerned about the wave behavior of light. As we all have appreciated already that light is basically wave in nature. जो light है वो basically वो wave है, and because it is basically wave, तो it must behave like waves in certain experiments. And you have gone through some of these experiments where light shows wave behavior. For example, you have been taught about YDSC, the Young's double slit experiment. Now, Young's double slit experiment is a proof that light is basically wave in nature, because the results of double slit experiment show that the light used passing through the double slit setup is behaving like waves. The interference pattern which we were getting on the screen in double slit experiment, that interference pattern can only be shown by waves. Particles cannot show interference pattern. Only waves can cast, only waves can produce that interference pattern which is the result of Young's double slit experiment. And because light is producing the same interference pattern as we expect through YDSC experiment, hence we can conclude that light is actually behaving like waves. Here again, we are discussing a phenomenon which is specific to waves only. That means polarization is a property of waves only. Only waves can be polarized. So if something is getting polarized, what does that mean? That means that that particular entity which is getting polarized is actually wave, because only waves can be polarized. So first of all, we will understand the meaning of polarization, and once you clearly understand the meaning of polarization,
then we will discuss the methods of producing polarized light. So first thing first, the meaning of polarization. Before I make you understand the meaning of polarization, I will quickly recall some basic facts about light. जल्दी जल्दी से लाइट के बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आपको वापस आपके सामने रख रहा हूं पॉइंट वाइज। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए कि जो लाइट है इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग शॉर्टकट में ईएम वेव लिखेंगे। ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्स्ट थिंग इज दिस। ऑलरेडी आप लोगों को जरूर पता होगी ये चीज, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम you need to have this in your mind. तो that is why I am making you recall, light एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कि ये वेव बनी है। आई रिपीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेव। अच्छा, व्हाट इज अ वेव? ये तो जानते ही हो आप। वेव का मतलब क्या होता है? वेव मींस डिस्टरबेंस। तो अगर आप पानी में पत्थर मारेंगे तो पानी के सरफेस पे यू विल सी डिस्टरबेंस। तो वेव का मतलब है डिस्टरबेंस। आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि आम भाषा में लोग कहते हैं डिस्टरबेंस, हलचल कहते हैं, और फिजिक्स की भाषा में इसका एक फैंसी नाम है वेव। तो आम लोग कहते हैं डिस्टरबेंस और हम लोग कहते हैं वेव। तो वेव का मतलब है हलचल, डिस्टरबेंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में होने वाली हलचल, होने वाला डिस्टरबेंस। तो वेव यानी कि डिस्टरबेंस, और डिस्टरबेंस किस में हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब करवाई जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करवाया जा रहा है, और ये दोनों डिस्टरबेंसेस जब मिलते हैं तो बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हलचल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट। तो जो लाइट है वो एक्चुअली में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में होने वाली हलचल है। तो एक चीज तो सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हलचल हो रही है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है, आगे बढ़ती है, तो जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है, यानी कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, किसकी वेलोसिटी? वेव की वेलोसिटी। तो जिस डायरेक्शन में वेव आगे जा रही है उसे कहा जाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ठीक है? तो जिस डायरेक्शन में वेव आगे जा रही है, इस डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन कहते हैं। तो वेव के आगे बढ़ने का डायरेक्शन, यानी वेव के प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन होता है, उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं। वेव का मतलब क्या है? अभी बताया था, वेव का मतलब डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस यानी वाइब्रेशन, राइट? तो जो ये वेव है
वेव में वाइब्रेशन हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। और अभी अभी मैंने बताया था कि डिस्टरबेंस किसका हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का भी हो रहा है। तो दो फील्ड्स का एक साथ डिस्टरबेंस हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टरबेंस है वो वेव की वेलोसिटी के, यानी वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर वेव एक्स एक्सिस में जा रही है, या सपोज करो कि वेव जेड एक्सिस पर जा रही है, ये जेड एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा ही होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टरबेंस है, वो वेव की प्रोपगेशन डायरेक्शन के 100% परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि अकेली इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टरबेंस तो है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का भी डिस्टरबेंस है। तो व्हाट अबाउट द डिस्टरबेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इसको भी समझो और ये याद रहना चाहिए जो समझा रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ये बेसिक जानकारी है, ये सभी बच्चों को मस्ट है, होनी ही चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी अभी जस्ट बताया है कि वेव की जो प्रोपगेशन डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टरबेंस होता है, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टरबेंस है वो दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर होता है। दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर, और जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है इस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड वाला डायरेक्शन और वेव की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये तीनों के तीनों डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। और ऐसा हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है। ये किसी एक पर्टिकुलर वेव की बात नहीं हो रही है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पॉसिबल हैं, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यही होता है। तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं। कौन सी तीनों डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ये तीनों के तीनों डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीनों, जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होते हैं। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों के तीनों। वही सेम सिचुएशन यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है और वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये तीनों के तीनों डायरेक्शंस म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर। तो ऑल थ्री ऑफ दीज डायरेक्शंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आई वांट यू टू रिपीट इट विद मी वंस अगेन। कौन से तीन डायरेक्शन है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में? इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव आगे जा रही है। ऑल द थ्री डायरेक्शंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पिक्चर दिखाई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैंने आपको पिक्चर दिखाई है। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग देख नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई नहीं देती है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमको दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती हैं। तो मैं पिक्चर बना रहा हूं। अगर आप देख सकते होते तो आपको कैसी दिखाई पड़ती? वो तो अलग बात है कि हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन अगर हम लोगों के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखने की क्षमता आ जाए तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पिक्चर कैसी दिखाई पड़ेगी? तो सपोज करते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, ये है उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन।
तो इधर राइट की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ रही है। जैसा कि मैंने सिखाया कि जिस डायरेक्शन में वेव आगे जाती है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं। तो वेव राइट साइड में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर हो रहे हैं, अप एंड डाउन। ठीक है, तो ये जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किए हैं, ये वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो मैंने ऊपर नीचे वेक्टर दिखाए हैं, दीज वेक्टर्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस आपको मैं शो कर रहा हूं। और जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया है डिटेल में कि जो मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन है वो इन दोनों डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं। तो कैन यू टेल मी कि मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन का कौन सा डायरेक्शन है? दोनों के परपेंडिकुलर किधर होगा? तो ये वाला डायरेक्शन राइट साइड और अप एंड डाउन। तो दोनों के परपेंडिकुलर मतलब ये अंदर बाहर, ये डायरेक्शन हुआ इन आउट। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन चल रहे हैं दोनों के परपेंडिकुलर। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन दिखा रहा हूं। सभी बच्चों को यह चीज समझ में आनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन दोनों के परपेंडिकुलर हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी और इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में उसके भी परपेंडिकुलर। दोनों के दोनों जो डायरेक्शंस हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं। और दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस डायग्राम में अंदर बाहर वाला डायरेक्शन की बात की जा रही है। तो दोनों के परपेंडिकुलर यानी इन आउट, अंदर बाहर का जो डायरेक्शन है। ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन। और जो मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन है उसे मैं रेड कलर के पेन से ड्रॉ करूंगा ताकि आप उसको क्लियरली समझ पाए। तो अंदर बाहर उनके वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो इट इज समवॉट लाइक दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन है ऐसे, यूं, इस तरह से। ये अंदर बाहर की तरफ है। आपको थोड़ा ज्यादा बेटर दिखाने के लिए मैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के कुछ वेक्टर्स ड्रॉ करूंगा ताकि आप इसको और बेहतर फील कर पाए। तो ये अंदर बाहर की तरफ आते हुए वेक्टर्स हैं। जस्ट ट्राई टू फील इट। इस तरह से। तो ये जो मैं रेड कलर के दिखा रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हो रहे हैं ऐसे। दिस वे। तो ये जो रेड कलर वाले हैं ये मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस हैं। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 में मैंने जस्ट यही बात मेंशन की है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो इस ब्रह्मांड में, उसमें वेव की वेलोसिटी का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन का डायरेक्शन, ऑल थ्री ऑफ दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and direction of propagation of the wave, all three are mutually perpendicular. तीनों के तीनों डायरेक्शन, तीनों कौन से? वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपको पहले से ही पता होने चाहिए। वैसे तो इनकेस किसी बच्चे के लिए ये 2 पॉइंट्स पहले नहीं पता थे तो अभी मैंने आपको बताए हैं। अब आप लोगों को ये दोनों बातें पता होनी चाहिए लाइट के बारे में। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए कॉपी पर, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं लाइट के बारे में, इन दोनों पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पे नोट करिए वीडियो पॉज करके, और ये डायग्राम ड्रॉ करिए क्विकली।
चलिए अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि पोलराइजेशन होने का क्या मतलब है। जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर वेव का प्रोपोगेशन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन का डायरेक्शन, ये तीनों के तीनों डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम लोग अपना सारा ध्यान इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस पर लगा देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर ध्यान देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग एडजस्ट रहेगी। मतलब अगर वेव एक्स एक्सिस में जा रही है, सपोज करो कि वेव जा रही है एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो रहे हैं वाई डायरेक्शन में, ऊपर नीचे। वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन वाई डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन अपने आप ही जेड डायरेक्शन में हो रहे होंगे, क्योंकि तीनों डायरेक्शन तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो अगर आप अपना सारा ध्यान इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन पे लगा दीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड को आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से एडजस्टेड रहेगी। तो अब हम लोग केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड पर अब हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे। रीजन मैंने बताया कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ गए तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से एडजस्टेड रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद एडजस्ट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग। तो आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे ध्यान रखो, मैग्नेटिक फील्ड तो अपने आप ही एडजस्टेड रहने वाली है। राइट ओके। तो हमारा सारा ध्यान किस पर रहेगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस पे अब हम लोग सारा ध्यान लगा के रखेंगे। अब देखो, जो नॉर्मल लाइट होती है, ऑर्डिनरी जो लाइट होती है, नॉर्मल लाइट जो होती है, जो लाइट इस समय आपके आसपास मौजूद है, आपके कमरे में कोई ट्यूब लाइट, कोई बल्ब अगर जल रहा है तो उसमें से जो लाइट आपको मिल रही है, सनलाइट जो है, तो जो नॉर्मल लाइट होती है बच्चों, उसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो होते हैं लेकिन हर पॉसिबल डायरेक्शन में। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो 100% वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। वो तो ये तो फिक्स है कि जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, कौन सा है, तो आई होप कि आप लोग इतने मैच्योर हो गए हो कि आप कह सकते हो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कोई एक डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक तो ये डायरेक्शन है ऊपर नीचे, एक अंदर बाहर, ये भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, अंदर बाहर। एक डायरेक्शन ऐसे टेढ़ा हो सकता है बीच में, परफेक्टली ऊपर नीचे भी नहीं, अंदर बाहर भी नहीं, बीच में थोड़ा टेढ़ा। इसी तरह नीचे की तरफ से थोड़ा टेढ़ा, अलग अलग एंगल्स पर। तो कितने एंगल टेढ़ा करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, कितने एंगल आगे की तरफ झुकाते हो, तो एक्चुअली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं है। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो कितने डायरेक्शंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट, राइट। ये जो वेलोसिटी वाला डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर ऊपर नीचे भी है, अंदर बाहर भी है, और इनके बीच में भी बहुत सारे एंगल्स हैं। इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज हैं जब हम कहते हैं कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो अब जरा समझने की कोशिश करना, मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आई होप कि सारे बच्चों को जरूर समझ में आएगा। जब हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कोई एक डायरेक्शन अकेला नहीं है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शन हो रहे हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज। तो जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, जो नॉर्मल लाइट होती है, हमारे आसपास मौजूद होती है, जो रोशनी, इस नॉर्मल लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है वो केवल एक डायरेक्शन में नहीं हो रहे होते, ऊपर नीचे भी हो रहे हैं, अंदर बाहर भी हो रहे हैं, और इनके बीच में जो तिरछे तिरछे डायरेक्शन है उन सभी के सभी पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन फैले रहते हैं। आप रफली ऐसा मानो, आपको बेटर समझाने के लिए आप इस तरह से सोचो तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि जो नॉर्मल लाइट होती है वो कोई एक सिंगल रे नहीं होती। सिंगल रे तो बहुत पतली होगी, उसे तो आप देख भी नहीं पाओगे। तो जो नॉर्मल लाइट होती है वो कोई सिंगल लाइट की रे नहीं होती। एक्चुअली वो बहुत सारी रे का गुच्छा होती है। एक रे, उसके ऊपर दूसरी रे, तीसरी रे, चौथी रे, और ये सारी रेज एक के ऊपर एक है क्योंकि ये वेव है। वेव एक के ऊपर एक रह सकती है, इसको कोई जगह नहीं चाहिए कि एक वेव है तो दूसरी वेव थोड़ा छोड़ के रहेगी। तो जो नॉर्मल लाइट की रे है, आप ऐसे इमेजिन करो, जो मैं कह रहा हूं ये रफ बात है, मतलब दिस इज नॉट प्रिसाइज। आपको समझाने के लिए मैं एक सिचुएशन आपके माइंड में डाल रहा हूं कि जो नॉर्मल जो लाइट होती है वो कोई एक अकेली लाइट की रे नहीं है। एक ही रे के अंदर बहुत सारी रेस का बंडल होता है। तो जिसे हम लोग रे कहते हैं वो एक्चुअली जो रे है वो बहुत सारी रेस से मिलके बनी है। अच्छा, इन सारी रेज में एक चीज कॉमन है, इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सबकी सब जा एक ही तरफ रही है, तभी तो गुच्छा बन गया है ना रेस का। तो सबकी सब जा एक ही डायरेक्शन में नहीं, इनका प्रोपगेशन डायरेक्शन सेम है, लेकिन इन रेज में फर्क है। हालांकि ये सभी के सभी जा सेम डायरेक्शन में रहे, इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कॉमन है। लेकिन सपोज करो पहली वाली जो रे है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रही है, दूसरी रे में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस ऊपर नीचे वाले डायरेक्शन से 20 डिग्री आगे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तिरछा वाइब्रेट हो रही है दूसरी रे। तीसरी रे में 20 डिग्री और आगे, तो और ज्यादा तिरछा इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रही है। ऐसे चौथी रे, पांचवी रे, और यहां पे गुच्छा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ऑर्डिनरी लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, तो आई होप कि सारे बच्चों को यह समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा, बल्कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर सामने की तरफ लाइट आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, तो थोड़ा इमेजिन करो, मैं अपनी फिंगर्स से आपको इमेजिन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर लाइट सामने की तरफ, आपकी तरफ आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ऊपर नीचे भी होंगे, राइट एंड लेफ्ट भी होंगे, और इनके बीच में तिरछे तिरछे भी होंगे, यूं और ऐसे नीचे इधर क्रॉस तिरछा। तो ऊपर नीचे, राइट एंड लेफ्ट, और बीच में जितने भी एंगल्स हैं, हर पॉसिबल एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो रहे होते हैं ऑर्डिनरी लाइट में। तो जैसा कि मैंने कहा, आप लोगों के लिए सोचने में आसानी होगी अगर आप ऐसे सोचो कि जो ऑर्डिनरी लाइट है वो कोई एक अकेली रे नहीं है, एक रे के अंदर बहुत सारी रेस का गुच्छा है। किसी रे में, किसी वेव में ऊपर नीचे वाइब्रेशन हो रहे हैं,
किसी दूसरी वेव में अंदर बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो रहे हैं, किसी तीसरी वेव में ऐसे क्रॉस में वाइब्रेशन चल रहा है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वो किसी यूनिक डायरेक्शन में ना होकर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो रहे होते हैं। ये ऑर्डिनरी लाइट, नॉर्मल लाइट की मैं बात कर रहा हूं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है दे आर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है इट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। हमेशा प्रोपोगेशन डायरेक्शन के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन प्रोपोगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। और जितनी भी पॉसिबिलिटी मौजूद है हर पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो रहे होते हैं ऑर्डिनरी लाइट के अंदर। ऑर्डिनरी लाइट मतलब जो लाइट अभी आपके कमरे में है, मतलब हम लोग अपनी जिंदगी को ऑर्डिनरी लाइट में जी रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं ऑर्डिनरी लाइट में, उनका कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं होता। मतलब वो एक प्लेन में नहीं होते। जैसे अभी जो डायग्राम है, इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन में है। कौन से प्लेन में है? बोल्ड वाले प्लेन में है। लेकिन ऑर्डिनरी लाइट में यह सिचुएशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस आर नॉट लिमिटेड इनटू वन प्लेन। ऊपर नीचे भी वाइब्रेशन हो रहा है, अंदर बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है, और बीच के एंगल्स पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है। और बच्चों, ये जो ऑर्डिनरी लाइट है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हर पॉसिबल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हर पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एग्जिस्ट करता है। और ध्यान रखना, जब मैं कह रहा हूं कि प्रोपोगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो प्रोपोगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कितनी पॉसिबिलिटी है? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। ऊपर नीचे, अंदर बाहर और बीच के सारे एंगल्स। तो जो ऑर्डिनरी लाइट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन प्रोपोगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हर पॉसिबल डायरेक्शन में रहते हैं। और ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में मौजूद है परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हर पॉसिबल एंगल पर हो रहे हैं, हर पॉसिबल प्लेन में हो रहे हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ऐसी जो लाइट है इसे हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, या इसे हम लोग ऑर्डिनरी लाइट भी कहते हैं। तो आप ऑर्डिनरी लाइट कहिए या आप अनपोलराइज्ड लाइट कहिए, ठीक है। तो अनपोलराइज्ड होने का मतलब यह होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है वो एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन के बाहर भी वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो जैसे जो डायग्राम आपके सामने है, इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एक ही प्लेन में हो रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल लाइट होती है, ऑर्डिनरी जो लाइट होती है, जिसे हम अनपोलराइज्ड लाइट भी कहेंगे आज के बाद, अनपोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है दे आर नॉट कंफाइंड टू वन प्लेन। एक प्लेन में कंफाइन होते नहीं, ऊपर नीचे भी वाइब्रेशन हो रहे हैं, अंदर बाहर भी हो रहे हैं, और बीच में हर पॉसिबल एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं। ऐसी जो लाइट है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हर डायरेक्शन में मौजूद है, इस प्रकार की लाइट को हम ऑर्डिनरी लाइट या फिर अनपोलराइज्ड लाइट का नाम देते हैं। तो अनपोलराइज्ड लाइट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हर डायरेक्शन में हो रहे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर और बीच के सभी एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये है अनपोलराइज्ड होना।
अनपोलराइज्ड होना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है वो एक प्लेन में लिमिटेड नहीं है। आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि पोलराइज्ड होने का क्या मतलब है। अनपोलराइज्ड का मीनिंग मैंने डिटेल में समझाया, आप ये भी समझ गए होंगे कि पोलराइज्ड होने का क्या मतलब है। पोलराइज्ड मींस कि अगर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एक ही प्लेन में हो रहे हैं, एक ही प्लेन में हो रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे हो रहे हैं, अंदर बाहर बिल्कुल नहीं हो रहे और बीच के किसी और एंगल पर नहीं हो रहे, केवल ऊपर नीचे हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है, या फिर केवल अंदर बाहर वाइब्रेशन हो रहा है, ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा है और बीच के किसी एंगल पर कुछ नहीं हो रहा है। सिंपल बात यह है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो होगा ही, लेकिन केवल एक प्लेन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो रहे हैं, ऐसी जो लाइट होती है उसे कहा जाता है पोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस एक प्लेन में लिमिटेड नहीं है। तो अनपोलराइज्ड, नॉट इन वन प्लेन। और पोलराइज्ड होना मतलब अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस आर लिमिटेड टू वन प्लेन ओनली, केवल एक ही प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस लिमिटेड रहे, एक प्लेन से बाहर कोई भी वाइब्रेशन ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, देन ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड उसी के हिसाब से रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो एक ही प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अगर लिमिटेड रह जाए, ऐसी अगर कोई लाइट की रे है, तो उसे हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट की रे। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये पोलराइज्ड लाइट कहां मिलती है, कैसे तैयार होती है, इस तरह के सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। इन सवालों का जवाब धीरे धीरे आपको इसी टॉपिक में मिलेगा। पहले तो आप ये समझिए कि पोलराइज होना और अनपोलराइज होने का मायने क्या है, उनका मीनिंग क्या है। यही मैं आपको आज के सेशन में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सिंपल है, बात बहुत ही सिंपल है, एक बार अगर समझ में आ जाए तो काम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस एक प्लेन के ऊपर ही लिमिटेड हैं, प्लेन के बाहर नहीं आ रहे, विद इन वन प्लेन ओनली, ऐसी लाइट रे को कहा जाता है पोलराइज्ड लाइट रे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एक प्लेन में लिमिटेड नहीं है, एक प्लेन से बाहर आ रहे हैं वाइब्रेशन, मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में वाइब्रेशन हो रहे हैं परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ऐसी जो लाइट रे है उसे अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट कहा जाता है। आई होप कि ऑल ऑफ यू आर नाउ क्लियर अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन। पॉइंट नंबर 3 में मैंने यही बात मेंशन की है। इन ऑर्डिनरी लाइट, जो नॉर्मल लाइट होती है, उसमें क्या होता है, वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट in all possible directions perpendicular to direction of propagation of light। तो लाइट का जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर और पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं ऑर्डिनरी लाइट के अंदर। सच अ रे ऑफ लाइट, ऐसी जो लाइट है जिसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हर पॉसिबल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है, such a ray of light is called unpolarized light or ordinary light। तो आप पॉइंट नंबर 3 लिखिए और पॉइंट नंबर 3 में ये मैंने समझाया कि ऑर्डिनरी लाइट यानी अनपोलराइज्ड लाइट क्या है। पॉइंट नंबर 4 में लिखने जा रहा हूं, उसमें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। पोलराइज्ड लाइट क्या है वो मैं लिखूंगा। तो पहले तो आप लोग ये पॉइंट नंबर 3 को वीडियो पॉज करके नोट करो। ओके, जस्ट अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि अनपोलराइज्ड लाइट उसको कहते हैं जिसमें वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हर पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो रहे हैं। ऐसी जो लाइट है
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है वो एक प्लेन में लिमिटेड नहीं है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हर पॉसिबल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एग्जिस्ट करते हैं। हर पॉसिबल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एग्जिस्ट करें, ऐसी जो लाइट है उसे अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ एक प्लेन में हो रहे हैं, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी केवल एक यूनिक डायरेक्शन में हो रहे हैं, और किसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन नहीं हो रहे, इस तरह की जो लाइट है उसे कहा जाता है पोलराइज्ड लाइट। तो पॉइंट नंबर 4 में मैंने लिखा है, इफ वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रे ऑफ लाइट आर कन्फाइंड विद इन अ सिंगल प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है वो अगर एक सिंगल प्लेन में कन्फाइंड है, देन सच अ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। तो ऐसी लाइट रे को हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो पोलराइज्ड होना मतलब वाइब्रेशन का एक प्लेन में रह जाना, एक प्लेन से बाहर वाइब्रेशंस नहीं आ रहे, एक ही प्लेन में सब कुछ हो रहा है, सारे वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो उसे कहा जाता है पोलराइज्ड वेव। किसी भी वेव की बात है, लाइट तो जस्ट एक एग्जांपल है। तो अगर वाइब्रेशंस एक ही प्लेन में है, एक प्लेन के बाहर नहीं आ रहे, तो ऐसी वेव को पोलराइज्ड वेव कहते हैं। लेकिन अगर वाइब्रेशन एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन के बाहर फैले हुए हैं, तो जो इस प्रकार की वेव है उसे अनपोलराइज्ड वेव कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में मैंने आपको लिखवाया है कि पोलराइज्ड लाइट क्या है। पोलराइज्ड लाइट वो है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन से बाहर वाइब्रेशन नहीं आ पा रहे। आई होप कि समझ में आ गई ये बात। और एक ही प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है, एक ही प्लेन में हो रहा है ना पोलराइज्ड लाइट में। तो अगर पोलराइज्ड लाइट है तो एक ही प्लेन में होता है वाइब्रेशन, जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है उसे कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो पॉइंट नंबर 5, द प्लेन इन विच vibrations of electric field are confined in a ray of polarized light is called the plane of polarization। जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो रहे हैं उसे हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। लाइट का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन उसे कहा जाता है। ठीक है, तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आपने वर्ड सुना होगा पहले। ये वही प्लेन है जिसे ग्लूकोज घुमाता है, पढ़ा है आपने। ग्लूकोज में से जब हम पास करते हैं पोलराइज्ड लाइट को, पोलराइज्ड लाइट को जब हम ग्लूकोज में पास करते हैं तो ग्लूकोज से बाहर आने पर उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन चेंज हो जाता है। लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, केमिस्ट्री में ये चीजें सिखाई जाती है। तो केमिस्ट्री में आपने ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सुना होगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या है। केमिस्ट्री में तो पढ़ लिया कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन घूम जाता है, लेकिन शायद आप नहीं जानते थे कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मीन्स व्हाट। तो आई एम टेलिंग यू कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मतलब पोलराइज्ड लाइट है, पोलराइज्ड लाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही प्लेन में होगी, और जब हम ग्लूकोज से पास करेंगे तो जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेन टर्न हो जाता है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये बदलता है। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन घूमता है, और ये जो फिनोमिनन है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का घूमना, इसे कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जो कंपाउंड्स जैसे कि ग्लूकोज इस फिनोमिनन को एग्जिबिट करता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, और आपने ये सारी बातें सीखी हैं कि ऐसे जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उसमें काइरल सेंटर होता है, काइरल कार्बन होता है, इस तरह की बातें डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। आई वॉन्ट टू गो इनटू केमिस्ट्री, आई एम जस्ट मेकिंग यू रिकॉल कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है ये आप पहले शायद नहीं जानते रहे होंगे, पर नाम आपने सुना है। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन केमिस्ट्री में आपको इंट्रोड्यूस किया गया है।
तो आज मैंने आपको समझाया कि ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या चीज है। पोलराइज्ड लाइट अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एक ही प्लेन में रहेंगे, और जिस प्लेन में वाइब्रेशन हो रहे हैं उसी प्लेन को प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 5 को जल्दी जल्दी नोट कर डालो। ऑलराइट, अभी तक मैंने जितना आप लोगों को पोलराइजेशन के बारे में समझाया, अगर आपको वो सारी बात समझ में आई है तो डेफिनेटली आप एग्री करोगे कि जो पोलराइजेशन है वो केवल ट्रांसवर्स वेव्स का किया जा सकता है। ट्रांसवर्स वेव किसको कहते हैं? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर पार्टिकल वाइब्रेशन है, ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल आगे पीछे होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में कभी भी पोलराइजेशन होना ना होना ये क्वेश्चन खड़ा नहीं होता, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में सब कुछ एक ही लाइन पे होता है। अगर वेव राइट साइड में जा रही है, मेरा राइट साइड में जा रही है, तो एक लाइन पे वेव जा रही है और उसी लाइन में आगे पीछे पार्टिकल के वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो सब कुछ एक ही लाइन में हो रहा है, और जब एक ही लाइन में हो रहा है तो एक प्लेन में हमेशा ही रहे। एक लाइन में हो रहा है तो एक प्लेन में हो रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये क्वेश्चन कभी खड़ा नहीं होता कि जो पार्टिकल के वाइब्रेशन है वो एक प्लेन में है कि एक प्लेन में नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये सब परेशानी नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में एवरीथिंग इज ऑन वन लाइन, सब कुछ प्रोपोगेशन डायरेक्शन के अलोंग ही होता रहता है। तो एक प्लेन में वाइब्रेशन है या एक प्लेन में वाइब्रेशन नहीं है, ये वाला जो सिचुएशन है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं है। ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में ही सवाल खड़ा होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है। अब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर तो बहुत सारे डायरेक्शन है, इनफाइनाइट डायरेक्शन होते हैं। तो ये कहना काफी नहीं है, इतना कह देना पर्याप्त नहीं है कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो रहा है। इतना कह देना काफी नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर कौन से प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा है, बताना पड़ेगा। केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है। जब आप लोगों को 11th क्लास में वेव का चैप्टर सिखाया गया और उसमें ये बताया गया कि ट्रांसवर्स वेव होती है, बताया गया ना ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ट्रांसवर्स वेव में जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल के वाइब्रेशन होते हैं। वहां पर आपको ये चीज नहीं बताई गई और आपने ध्यान भी नहीं दिया। आप लोग कहां ध्यान देते हो, आपने भी नहीं सोचा और आपसे ये चीज एक्चुअली छिपाई गई कि जब हम ये कह रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है, तो वेव की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कोई एक डायरेक्शन तो नहीं हो सकता। वेव की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कितने डायरेक्शन होंगे? इनफाइनाइट। तो ये भी बताना पड़ेगा। ये कहना काफी नहीं है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कौन से प्लेन में? क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शन है। कौन से डायरेक्शन में एग्जैक्टली वाइब्रेशन हो रहा है ये कहना पड़ेगा, तब जाके वाइब्रेशंस की पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे हो पाएगी। तो जो पोलराइजेशन का फिनोमिनन है वो केवल ट्रांसवर्स वेव के लिए ही पॉसिबल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन नहीं हो सकता। तो लाइट का पोलराइजेशन होता है क्योंकि लाइट ट्रांसवर्स वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ट्रांसवर्स होती है। अभी तो मैंने बताया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन यानी ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ट्रांसवर्स होती है। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है यानी ट्रांसवर्स वेव है, तो लाइट का पोलराइजेशन किया जा सकता है।
तो लाइट पोलराइज हो सकती है, अनपोलराइज हो सकती है, लेकिन साउंड में ये सब चक्कर नहीं है। साउंड पोलराइज है, अनपोलराइज है, ये सब नहीं है। साउंड में पोलराइजेशन फिनोमिनन की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि साउंड है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में सब कुछ एक ही लाइन में होता है, सारे वाइब्रेशन एक लाइन में होते हैं, और एक लाइन में है तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक प्लेन में आएंगे कि नहीं। 100% एक प्लेन में आएंगे, अगर एक लाइन में है तो एक प्लेन में तो आएंगे ही आएंगे। तो यही चीज मैंने पॉइंट नंबर 6, 7, 8 में लिखी है। क्लियरली ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, और ये चीज आप अंडरलाइन कर लीजिए, ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव के साथ ही पॉसिबल है। Phenomenon of polarization is not possible with longitudinal waves, as particle vibrations are along direction of propagation of a longitudinal wave. Longitudinal wave में जो particle vibration है वो direction of propagation के along है, मतलब सब कुछ एक ही लाइन पे चल रहा है, तो वहां पे phenomenon of polarization की हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। Light waves can be polarized because light waves are transverse. Electromagnetic waves are always transverse. Sound waves cannot be polarized as sound waves are longitudinal. और longitudinal wave में हम polarization phenomenon की बात ही नहीं करेंगे, polarize है नहीं है ये सब डिस्कशन ही नहीं करेंगे। मतलब sound waves में polarization phenomenon का डिस्कशन ही नहीं होगा। तो जो ये जो पोलराइजेशन फिनोमिनन है ये ट्रांसवर्स वेव के लिए ही हो सकता है, ट्रांसवर्स वेव के साथ ही पॉसिबल है। मेरे कहने का मतलब ये है, इस दुनिया में अगर कोई चीज पोलराइज हो सकती है तो वो एक ट्रांसवर्स वेव है। जो भी चीज पोलराइज हो सकती है वो ट्रांसवर्स वेव है, और जिसका पोलराइजेशन होना संभव नहीं है वो ट्रांसवर्स वेव नहीं है। अब वो कुछ और है पर ट्रांसवर्स वेव तो नहीं है। अब चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, चाहे कोई पार्टिकल, चाहे कोई और चीज हो इस ब्रह्मांड की, पर वो ट्रांसवर्स वेव 100% नहीं है, क्योंकि अगर पोलराइज होना संभव नहीं है तो वो ट्रांसवर्स वेव नहीं है। पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का ही किया जा सकता है, यानी पोलराइज होना और नहीं होना ये ट्रांसवर्स वेव होने का सबूत है। तो अगर आप टेस्ट करना चाहते हो, आपको मैं एक वेव देता हूं और मैं आपसे कहता हूं टेस्ट करो कि ये जो वेव है ये ट्रांसवर्स वेव है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो आप उसका पोलराइजेशन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसका पोलराइजेशन कर पा रहे हैं तो ये इस बात का सबूत है कि जो वेव आपको दी गई थी वो ट्रांसवर्स वेव है। और अगर पोलराइजेशन जैसी कोई बात ही नहीं है उसके अंदर, देन दैट वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। आई होप कि जो मैंने समझाया आप समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 6, 7, 8 को आप लोग नोट कर लीजिए। आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करें।